نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پر جلوہ افروز علماء کرام و دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حاضران مجلس، ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی کو عنوان سخن بنایا ہے. اسی آیت کریمہ کا معنی و مطلب بیان کرنے سے پہلے ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر سید المرسلین طٰہٰ و یاسین غریبوں کا سہارا یتیموں کا ماوا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ درندے سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی طوفان سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے. حضرات محترم، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالزار بن جائے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے، نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسم
मुजस्समा होते हैं। बेशक बेशक। हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो मेरा वली होता है मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, जो मेरा वली होता है मैं उसका आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, जो मेरा वली होता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, जो मेरा वली होता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ कि वली का चलना हकीकत में खुदा का चलना है, वली का देखना हकीकत में खुदा का देखना है, वली का सुनना हकीकत में खुदा का सुनना है। इसलिए जुबान तो वली की होती है, हकीकत में वो बात खुदा की होती है। इसलिए जो वली कह देता है वो होकर ही रहता है। वली अगर पत्थर को सोना बन जाने को कह दे तो पत्थर सोना बन जाता है। वली अगर दरिया से रास्ता तलब करे तो दरिया रास्ता दे देता है। इसलिए जुबान तो वली की होती है, हकीकत में वो बात खुदा की होती है। इसी तरह जो वली कहता है वो होकर ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अपने औलिया अल्लाह को इख्तियार अता फरमाता है। हर दौर में वली का होना जरूरी है, हर मुल्क में वली का होना जरूरी है, हर शहर में वली का होना जरूरी है, जिसके मातहत इस शहर का निजाम चलता है, जिसके सदको तुफैल अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल करता है, जिसके वजूद के सबब अल्लाह तबारक व तआला आने वाली आफत को दूर फरमाता है, जिसके वसीले से नामुरादों को मुरादें मिलती है, जिसके वसीले से इंसान का ईमान महफूज हो जाता है। दुनिया से बुराई खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वलियों को भेजता है, जो तलवारों से नहीं बल्कि चश्मे बसीरत से तबलीग करते हैं और दुनिया वालों को राह रास्त पर लाते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो खर का आदत औलिया अल्लाह से सादिर हो तो करामत कहलाती है, अगर वही किसी काफिर और मुश्रिक से सादिर हो तो इस्तिद्राज कहलाता है। बल्कि वली के लिए ये शर्त नहीं कि उसे करामत सादिर ही हो, अगर सादिर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उससे करामत सादिर हो। बहुत खूब माशाअल्लाह। बल्कि वली की शान तो यह है कि वो अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा पर डालते हैं, क्योंकि यह किसी काफिर और मुश्रिक से नहीं हो सकता। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरिया के किनारे से जा रही थी। एक अल्लाह का वली अपनी करामत दिखाने के लिए दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगे। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वलिया थी। वो उसके वली के सर के ऊपर फिजा में अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगी। उस वली को बहुत ताजुब हुआ और कहने लगा, आप कौन? हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आजिज़ी व इनकसारी से कहने लगी, मैं एक अल्लाह की बंदी हूँ, लेकिन जो तुमने करके दिखाया वो एक मछली भी कर सकती है, यानी पानी पर तैर सकती है। जो मैंने करके दिखाया वो एक परिंदा भी कर सकता है, यानी फिजा में मुअल्लिक रह सकता है। हमको ऐसा काम करना चाहिए जो न परिंदे कर सके, न चरिंदे कर सके, न दरिंदे कर सके। वही सुन्नत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारना और दीन मोहम्मदी की तबलीग करना, क्योंकि सुन्नत मुस्तफा पर चरिंदे अमल नहीं कर सकते, सुन्नत मुस्तफा पर मछली नहीं चल सकती, सुन्नत मुस्तफा पर परिंदे अमल नहीं कर सकते। लिहाजा सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना ही मेराज इंसानियत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा जो अल्लाह के वली होते हैं वो तलवारों से नहीं बल्कि चश्मे बसीरत से तबलीग करते हैं। कोई आलिम दीन सालों साल तक वो तबलीग नहीं कर सकता जो अल्लाह के वली आन वाहिद में करते हैं। एक वाक़ा आपके सामने पेश करता हूँ, आपको खुद अंदाजा होगा कि जो अल्लाह के वली होते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत उनके पास कितनी होती है। एक अल्लाह की वली एक हिंदू बारात लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, जिसमें हजारों अफराद मौजूद थे। चलते चलते वो रास्ता भूल गए, कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जिसे वो रास्ता मालूम करते। जब उनमें से किसी ने देखा कि एक दरवेश अपनी झोपड़ी में याद इलाही में मशगूल है, उनमें से किसी ने कहा इस दरवेश से रास्ता मालूम करना चाहिए। किसी ने कहा इस दरवेश को क्या रास्ता मालूम होगा, वो तो दरवेश है। किसी ने कहा आखिर पूछ लेने में क्या हर्ज है। तमाम लोग उस दरवेश के झोपड़ी के बाहर गए और आवाज लगाई, बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, बाबा हमको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है, बाबा हम रास्ते से भटक गए हैं। इतना सुनने के बाद वो दरवेश बाहर आया और कहने लगा, क्या तुम रास्ते से भटक गए हो, तुमको रास्ता दिखा दूं या बता दूं? सबू ने एक जबान होकर कहा, बाबा रास्ता दिखा दीजिए। तो दरवेश ने कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो तो तुमको सामने रास्ता दिखाई देता हो। सबू ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली तो सामने काबा मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा नजर आया। दरवेश ने कहा, तुम्हारा सीधा रास्ता यही है, तुम एक मुद्दत से भटके हुए हो। सबू ने आंख खोल दी और सबू ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। उन लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों का रास्ता मिल गया।